Good morning, all of you. Welcome to the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. As we are doing the chapter number 4, that is Principle of Mathematical Induction. Yesterday, we had done till question number 3. Now, today, I am going to explain you the question number 5 from the exercise 4.1 from the NCERT. Let me start the question number 5. Now, in the question number 5, the question is that 1 into 3 plus 2 into 3 to the power 2 plus 3 into 3 to the power 3 and dash dash dash, and this is equal to 2n minus 1 3 to the power n plus 1 plus 3 upon 4. As all of you know that how can we start the question? First of all, we will assume this series equal to Pn. So the first step is the series is equal to Pn. So we write down it like this. Next is we have the 3 step. One is n is equal to 1, second is n is equal to k, and the third step is n is equal to k plus 1, as I already told you. So let me start with the n is equal to 1. For the n is equal to 1, if the statement is true, then we will move for the next step. So let me see for the n is equal to 1. So if n is equal to 1, it means that the first term, so 1 into 3, that will be 3. Now this side, in place of n, we will write down 1. So 2 into 1 minus 1, 3 to the power 1 plus 1 plus 3. So it upon 4. So after solving it, we get this 1 into 3 to the power 3 to the power 2 plus 3 upon 4. And we get the 12 upon 4, and this is also equal to 3. So right hand and the left hand both are equal. It means that the statement is true for n is equal to 1. Now the next step is that we assume that it is true for pk. It means that n is equal to k. So wherever there is a n, we just put down the k like this: 2 k minus 1 3 to the power k plus 1 3 upon 4, and we consider it as a equation number 1. Now the next is we will take n is equal to k plus 1, and now we have to prove it that the n is equal to k plus 1 is also true for it. So what we have to prove? In place of k, we will put down k plus 1, and I already told you the second last term when we will put down k plus 1 is this k. So k into 3 to the power k plus, in place of k, we will put down k plus 1 3 to the power k plus 1 इक्वल टू, अगर हम k की जगह पे k plus 1 पुट करेंगे, मैं यही स्टेप करके बता रही हूँ, 2k plus 1 minus 1. तो after solving it, what we will get? 2k plus 2 minus 1. So 2k plus 1. 3 to the power k plus 1 plus 1. So it will become k plus 2 plus 3 upon 4. Now if we will see this series, both of them are equal. So in place of this, we can write down this statement. तो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया: 2k minus 1 3 to the power k plus 1 plus 3 upon 4, and this one as it is यहाँ पर आ गया. अब मैंने कल भी बताया था कि अगर कुछ कॉमन है वो हम लेंगे. पहले हमने यहाँ पर बस एक स्टेप कर दिया कि 4 को एलसीएम में यहाँ पे लिख दिया, तो 4 यहाँ आ गया, ये मल्टीप्लाई बेस में आ गया. नेक्स्ट व्हाट वी कैन टेक आउट द कॉमन, 3k plus 1 इसके पास भी और इसके पास भी, इन दोनों में से हम ये कॉमन ले लेंगे. तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास. 3 था इसके पास, k plus 1 नहीं था, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया. अब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद वी गेट द 6k plus 3 एंड इंटू 3 to the power k plus 1 plus 3 upon 4. अगर हम इसमें देखें तो व्हाट वी कैन टेक आउट द कॉमन, 3 हमने कॉमन ले लिया, एंड व्हाट इज लेफ्ट, द स्टेटमेंट इज लेफ्ट. अब बेस इज सेम, पावर विल बी एडेड. So 3 to the power k plus 2, and this is the statement, plus 3 upon 4. तो यही हमें प्रूव करना था. The same, you can see both of them are same. So in this way we can solve this question. I hope that all of you get clear this. Let me come on the question number 9 now. In the question number 9, the equation is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8. मैंने इंटेंशनली लिया है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है. 1 upon 2 to the power n is equal to 1 minus 1 upon 2 to the power n. This we have to prove. तो पहला काम वही, let Pn is the series. Second step, n is equal to 1. That means first term we will take here.
और यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे एंड वी गेट दैट 1/2. लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोथ आर इक्वल. सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? परफेक्टली ओके. पी के इज ट्रू व्हेन द n इज इक्वल टू k. इट इज़ ट्रू फॉर इट. अब हमने सिंपल सा काम करना है. जो हमारी सीरीज़ है जहाँ पर भी n है वहाँ पर हमने k पुट करना है. सिंपल काम. और इसको इक्वेशन 1 अजम कर लेना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1. इसको हमने प्रूव करना है बाय हेल्पिंग दिस वन सीरीज. तो व्हाट वी हैव टू प्रूव? 1/2 प्लस 1/4. सेकेंड लास्ट टर्म हमारी ये ही होगी एंड द लास्ट टर्म k की जगह पे k प्लस 1. एंड दिस वी हैव टू प्रूव कि ये इसके इक्वल है. ठीक है. तो हमने क्या किया? ये सीरीज़ किसके बराबर है? इसके बराबर. उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हमारा जो कॉमन पार्ट है उसको हमने बाहर निकाल लिया. 1/2k हमारा कॉमन था एंड व्हाट इज़ लेफ्ट? 1 माइनस 1/2. वहाँ पे 2k प्लस 1 था तो एक 2k बाहर आ गया तो 2 विल बी लेफ्ट ओवर देयर. अब इसको सॉल्व किया. वी गेट दैट 1/2 एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट 1 माइनस 1/2k प्लस 1 विल बी लेफ्ट हियर. आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर. सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बार बार. Let me start with the question number 12. A plus AR square AR n minus 1 and we have to prove this is equal to AR to the power n minus 1 upon R minus 1. ठीक है. तो first of all we will take this series Pn is equal to this whole series and n is equal to 1. n is equal to 1 पे हम वेरीफाई करेंगे. 1 means A हो जाएगा. फर्स्ट टर्म वी हैव टू टेक हेयर. यहाँ पे r टू द पावर n है, n की जगह पे 1 पुट किया तो ये सेम हो गया, कट गया और a बच गया. तो a इज विल बी इक्वल टू a. इट वेरीफाइज द फर्स्ट. सेकेंड हमने क्या लेना है? हमारा अजम्पशन रहता है कि k n इज इक्वल टू k पर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है. तो जहाँ पर भी n है वहाँ पे हमने क्या किया? k पुट कर दिया. तो k माइनस 1 इज इक्वल टू a r टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ये हमारी स्टेटमेंट 1 हो गई. अब हमें क्या करना है? वी शैल प्रूव दैट द पी के प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू. तो हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 ले लिया. तो जहाँ पर भी k है वहाँ पर अब हमें क्या पुट करना है? k प्लस 1. ये स्टेटमेंट्स में थोड़ा ध्यान रखना. जब हम यहाँ k प्लस 1 पुट करेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा. तो व्हाट विल बी लेफ्ट? k बचेगा बस हमारा. सेकेंड लास्ट टर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सेम आती है हमेशा. r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 सिंपल है. तो दिस वी हैव टू प्रूव कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड. हमने इधर ले लिया तो सेम सीरीज़ है. इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी. अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे? हमने एलसीएम ले लिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी ताकि जो कैलकुलेट हो सके उसको सॉल्व कर लेंगे. तो हमने कैलकुलेशन की ए आर के माइनस ए प्लस ए आर के और ये एलसीएम में r माइनस 1. इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. वी गेट दिस. ये और ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी. अगर हमें ये रिज़ल्ट चाहिए तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? इसमें से a कॉमन ले लेंगे एंड आफ्टर टेकिंग a कॉमन वी गेट द सेम रिजल्ट लाइक दिस. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. यहाँ पर दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो हमने इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग ही करना है. आप क्या करते हो जब आप सॉल्व कर रहे होते हो? क्योंकि अब तक सारे क्वेश्चंस में प्लस साइन या माइनस साइन जनरली होता है, बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो उसको मल्टीप्लिकेशन की तरह ही करना है. तो पहला स्टेप्स आर सेम. फर्स्ट स्टेप Pn हमने अज़म कर लिया होल सीरीज़ को. n इज इक्वल टू 1. n की प्लेस पे 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म हमने ले लिया 1 प्लस 1/1 दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड दिस साइड n प्लस 1 था तो 1 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 2. सो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज़ ट्रू फॉर पी के. मतलब n इज इक्वल टू k पर ये ट्रू है. तो जहाँ पर n था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? k पुट कर दिया. ठीक है. ये सेकेंड स्टेप हो गया. तो ये स्टेप में हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया. अब हमें प्रूव करना है k प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू. तो n को हमने क्या ले लिया? k प्लस 1. सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? k प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा? k प्लस 2. तो दिस वी हैव टू प्रूव.
अब हम इस वाले सीरीज़ को लेंगे तो दिस सीरीज़ इज इक्वल टू दिस k प्लस 1 इंटू 1 प्लस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जनरली बच्चे प्लस का साइन बीच में लगा देते, सो बी केयरफुल अबाउट इट बेटा। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया और ये कट जाएंगे, तो व्हाट इज़ लेफ्ट k प्लस 2। सिंपल क्वेश्चन है एंड k प्लस 2 यू गेट हियर। आई होप दैट स्टूडेंट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।